Assalamu alaikum. My name is Qasim Shehzad. You are watching my YouTube channel Qasim Shehzad. In this lecture, we are moving towards the engineering drawing lecture that is from the projection. In the previous lecture, we are discussing the basic knowledge of orthographic projection. Now we are moving to detail of the projection topic. So let us discuss what is projection. Projection, the main point at which these lines are the points at which these lines meet the plane is called projection of that object. Projection is the points that are made from the lines. मतलब ये है कि प्रोजेक्शन क्या चीज़ है। अगर आपके साथ एक ऑब्जेक्ट है और इसका प्रोजेक्शन आप बना रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट से जो लाइन एमिट हो रहे हैं वो लाइन जाके एक रेफरेंस प्लेन को वो हिट करेंगे, वो इससे मिल जाएंगे और इसी ही रेफरेंस प्लेन में वो एक ऑब्जेक्ट बना लेगा। तो इसी ही बनाने को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन कहते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस प्लेन में एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना ले तो इसी ही ऑब्जेक्ट का जो दूसरा शक्ल बन गया, ये किस चीज़ की बदौलत बन गया? ये प्रोजेक्शन की बदौलत बन गया। Now, what is the methods of projection? There are four ways or four methods of projection. First one is orthographic projection. That is 2D. That is two-dimensional view, and we have to draw two or three views of the orthographic projection to completely describe the object. Second one is the oblique of projection. Third one is the isometric projection that we have studied already, and fourth one is perspective projection. Pictorial view as I see it, 3D view, 1 view. इस बात का मतलब ये है कि ये तीनों जो है ये अगर आपको एक व्यू दे दे तो एक व्यू से सारा ऑब्जेक्ट कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये 3 डायमेंशनल व्यू होगा। ऑब्लिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन 3 डायमेंशनल होगा और ये जैसा होगा जैसा ही आपकी आंख उसे देख रही है, जैसा ही दिखाई दे रहा है। First of all, we are moving toward to discuss orthographic projection. When the projectors are parallel to each other and also perpendicular to the plane. When the projecting lines is perpendicular to the plane. When the projecting line, this is the projecting lines, and these projecting lines when they are perpendicular to the plane. This is the plane and this is the plane. So these projecting lines when they are perpendicular to the plane, this is called orthographic projection. This is the fourth quadrant, first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पर बनेगा और इसका टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनेगा और इसका जो रेफरेंस प्लेन है इसको हम क्या कहते हैं? एक्स वाई प्लेन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मैंने आपको पहले ही बता लिया था कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अपर साइड पर फ्रंट व्यू होगा और लोअर साइड पर टॉप व्यू होगा। प्रोजेक्शन का another definition है method to describe the shape of an object by causing an image to be formed by the rays of the sight taken in a particular direction from an object to the picture plane. Projection is simply the rays of sight. Projection is just the rays. When these rays emit from an object and they are lying on a picture plane, so they make an image. So we say this is the
projection image या this is the projection of that object। इस बात का मतलब ये है कि अगर आपको एक शेप डिस्क्राइब करना है, आप इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना रहे हैं और ये इमेज बन रहा है किस चीज़ की बदौलत, रेज ऑफ साइट। आप जो देख रहे हैं, आपके आंखों से रेज निकल रहे हैं और वो जाके बाउंड्री से टकरा कर एक प्लेन में वो आपके लिए क्या बनाएगा, एक इमेज बनाएगा और वो पार्टिकुलर डायरेक्शन पर होगा। पार्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब ये है कि अगर ये आपके आंख है और आपके आंख इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट का जो बाउंड्री है ये इस प्लेन में एक ख़ास इमेज बना रहा है, आपके आंखों से इस प्लेन में एक ख़ास इमेज बन जाएगा और इसी ही इमेज को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मतलब ये है if rays are perpendicular to the picture plane the projection is orthographic projection। अगर rays of your eye या rays of the object ये perpendicular है पिक्चर प्लेन की, ये पिक्चर प्लेन है, ये प्लेन है और इस प्लेन और जो प्रोजेक्शन लाइन है अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होगा। ओब्लिक प्रोजेक्शन कौन सा होगा, if the rays are at angle to the plane the projection is known as oblique projection। oblique projection वो होगा सेकंड वन जब ये ऑब्जेक्ट और प्लेन कुछ खास एंगल पर होंगे और आपका आंख कुछ खास एंगल पर इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ये जो इमेज बन रहा है इसको हम ओब्लिक प्रोजेक्शन या ओब्लिक प्रोजेक्शन इमेज कहते हैं। Now third one is perspective projection। If rays is taken from the particular stationary point the projection is perspective projection। इसका मतलब ये है कि अगर आपका आंख एक स्टेशनरी पॉइंट है और आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ये कुछ बड़ा नज़र आएगा पिक्चर प्लेन में। मतलब ये है कि आप एक ही पॉइंट से इस सारे ऑब्जेक्ट का इहाता कर रहे हैं, आप इसको देख रहे हैं तो इसका जो बाउंड्री है वो इस पिक्चर प्लेन में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर एक इमेज बना रहा है और इस इमेज को हम क्या कहते हैं, फिर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कहते हैं या पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट कहते हैं। Now we are moving toward the reference plane। What is the reference plane? The horizontal plane and vertical plane intersect at right angle and create a line of intersection known as reference line। reference line क्या चीज़ है, जब हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं एट राइट एंगल। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये हमारे पास वर्टिकल प्लेन है। अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये वर्टिकल प्लेन एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं 90 डिग्री पर या राइट एंगल पर एक ख़ास पॉइंट पर और ये क्रिएट कर रहा है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ये एक लाइन क्रिएट कर रहा है और इसी ही लाइन को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस लाइन कहते हैं और इसी पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। जब ये 3 डायमेंशनल हो जाए ना तो फिर आपको बेहतर समझ में आ जाएगा कि तो ये वाला जो लाइन है इसको हम रेफरेंस लाइन कहते हैं, इसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये हमारे पास वर्टिकल प्लेन है। नाउ ये मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन बनाया लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में फिर अलग, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में इसी तरह ही एक रेफरेंस लाइन बन जाएगा और उसके साथ वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। नाउ
रेफरेंस प्लेन जो है या रेफरेंस लाइन जो है ये डिनोट हो रहा है एक्स वाई पर, इसको हम एक्स वाई प्लेन कहते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में हम ये समझ जाएंगे कि एक ऑब्जेक्ट का जब आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो इसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा और इसको हम ऑर्थोग्राफिकली कैसे डिनोट करेंगे, इसको हम कैसे कैसे बनाएंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द वर्टिकल प्लेन, ये हमारे पास वर्टिकल प्लेन है और जब इस वर्टिकल प्लेन के फ्रंट पर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये बॉक्स पड़ा हुआ है एंड अबाउ द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउ होगा और वर्टिकल प्लेन के फ्रंट पर होगा। द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड ऑन दिस प्लेन, और जब ये ऑब्जेक्ट प्रोजेक्शन करेगा इसी ही प्लेन पर, इसी ही दोनों प्लेन पर जब ये ऑब्जेक्ट प्रोजेक्शन करेगा तो इसी ही को हम क्या कहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रोजेक्शन है। हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है। ये ऑब्जेक्ट वर्टिकल प्लेन पर, ये एक ऑब्जर्वर है जो कि इनसाइड खड़ा हुआ है इसी ही बॉक्स पर या इसी ही बॉक्स में, और ये ऑब्जर्व कर रहा है इसका फ्रंट व्यू। इसका फ्रंट व्यू इस वर्टिकल प्लेन पर बनेगा। इसका जो टॉप व्यू है जो ऊपर से देख रहे हैं तो इसका जो टॉप व्यू है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनेगा, और इसी ही प्लेन को हम क्या कहते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इन फ्रंट ऑफ द वर्टिकल प्लेन है एंड अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन है। नाउ द टॉप व्यू कम्स बिलो द फ्रंट व्यू। अब इस बात का मतलब क्या है कि टॉप व्यू ऊपर आएगा, टॉप व्यू नीचे आएगा फ्रंट व्यू से, फ्रंट व्यू ऊपर आएगा और टॉप व्यू नीचे आएगा। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अपर साइड पर फ्रंट व्यू होगा और लोअर साइड पर टॉप व्यू होगा। अब उसके कॉन्सेप्ट पर आ जाए, ये जो वर्टिकल प्लेन है इसी वर्टिकल प्लेन में इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू बन गया, तो ये फ्रंट व्यू ये ऊपर आ गया। नाउ अब इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसी ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू बन गया, लेकिन हम ये टॉप व्यू और ये फ्रंट व्यू ये हमें दोनों प्लेन शो कर रहे हैं। तो अगर हम एक शीट बना रहे हैं तो हमको चाहिए कि हम इसी ही ऑब्जेक्ट को एक ही प्लेन में डिस्कस करें या एक ही प्लेन में ड्रा करें अपनी आसानी के लिए। तो इसीलिए हम एक क्वाड्रेंट के एक हिस्से को 90 पर रोटेट करेंगे और वो भी कैसा, वो भी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो हम इसी ही ऑब्जेक्ट को या इसी ही हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करेंगे इसी तरफ, क्लॉकवाइज तरफ, और ये इस तरफ आ जाएगा। अब ये एक सीधा लाइन बन गया। इसी ऑब्जेक्ट ने यहाँ पर जो फ्रंट व्यू बनाया हुआ था वो यहाँ पर था, और इसी ऑब्जेक्ट ने यहाँ पर इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक टॉप व्यू बनाया हुआ था। जब ये लाइन इसी तरफ आ गया तो ये जो टॉप व्यू बन गया था ये भी इसी तरफ आ गया। तो फिर हम इस फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड को एक ही प्लेन में शो करेंगे कि जिसकी ऊपर में फ्रंट व्यू होगा और जिसकी नीचे टॉप व्यू होगा। तो ये बात जाहिर हुआ कि जो टॉप व्यू है वो नीचे होगा, वो बिलो होगा फ्रंट व्यू से। अभी आपको समझ आ गया होगा। एट लीस्ट 3 views is required to completely explain an object. Now, in today's lecture, we are discussing in objects projections only 2 views. We are discussing the front view and the top view. But at least 3 views is required to completely explain an object. We are discussing previously that if we have to draw orthographic projection, so in orthographic projection we have required 3 views. We have required front view, top view and any side view
to describe completely the description of an object. Now we are moving toward the third angle projection. In third angle projection, when object is situated behind the vertical plane and below the horizontal plane, hence top or plane view obtained above the reference line and elevation or front view below the reference line. अभी इस बात का मतलब ये है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अब एक ऑब्जेक्ट जो कि शामिल है बिलो आर बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन, ये जो वर्टिकल प्लेन है ये इसकी पीछे है, मतलब ये है कि इसके बाई तरफ है। इस वर्टिकल प्लेन की बाई तरफ एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो हमने कहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि पड़ा हुआ है वर्टिकल प्लेन के पीछे, तो ये वर्टिकल प्लेन के पीछे पड़ा हुआ है। एंड बिलो द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये इस हॉरिजॉन्टल प्लेन की नीचे है। जब आपको एक क्वेश्चन में ये दोनों बातें आ जाए कि ये बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन है और बिलो द हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो आप समझ जाए कि ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात कर रहा है। लेकिन अगर आपको सवाल में ये कह रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये पड़ा हुआ है इन फ्रंट ऑफ द वर्टिकल प्लेन एंड अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन, सो we must have memorized that this object is on the first quadrant. But if in the question it says that an object is situated behind the vertical plane and below the horizontal plane, so you must have understood that this object is lie on the third quadrant. Now टॉप व्यू और प्लेन व्यू, टॉप व्यू को हम प्लेन व्यू भी कहते हैं, तो टॉप व्यू ऑब्टेन होगा अबव द रेफरेंस लाइन। ये इसी तरह ही है जो हमने पहले पढ़ा। टॉप व्यू ये ऑब्टेन होगा अबव द रेफरेंस लाइन। मैंने आपको रेफरेंस लाइन शो किया हुआ, ये एक्स वाई जो है ये रेफरेंस लाइन है। मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये टू व्यूज जो हम शो कर रहे हैं तो ये दोनों प्लेन्स में है, एक प्लेन वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। तो हम अगर शीट में उसी बना रहे हैं तो हम इसको एक प्लेन में लाएंगे। एक प्लेन में लाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप इसको 90 पर रोटेट करेंगे, वो भी क्लॉकवाइज। तो आप इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को फिर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और इससे एक वर्टिकल लाइन बन जाएगा। तो जब पूरा वर्टिकल लाइन बन जाएगा और ये एक्स वाई लाइन है दरमियान में, तो हमारे पास जो टॉप व्यू है वो रेफरेंस लाइन के अबव होगा। रेफरेंस लाइन के अबव होगा क्या चीज़? टॉप व्यू। और फ्रंट व्यू नीचे होगा रेफरेंस लाइन का। अब हम डिस्कस करेंगे, अगर यहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है जो कि आउटसाइड ऑफ द दिस बॉक्स है, जब हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं तो ऑब्जर्वर वो बाहर खड़ा होगा, वो दाई तरफ खड़ा होगा या इस बॉक्स से बाहर खड़ा होगा। लेकिन अगर हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात करें तो वो जो ऑब्जर्वर है वो इस बॉक्स के अंदर खड़ा हो सकता है, क्योंकि जब ये इस बॉक्स के अंदर खड़ा हो जाए तो इस बॉक्स के अंदर ही इसको सारा व्यूज नज़र आ जाएगा। लेकिन अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अगर एक शख्स यहाँ पर खड़ा हो जाए तो क्या इसको इस एक्स वाई या इस वर्टिकल लाइन या इस वर्टिकल प्लेन में कुछ ऑब्जेक्ट नज़र आएगा? नहीं आएगा। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जर्वर को इस बॉक्स से बाहर खड़ा करना होगा, और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में चाहे वो बाहर खड़ा हो जाए या अंदर खड़ा हो जाए। अब बात यही है कि ये टॉप व्यू जो है ये अबव द रेफरेंस प्लेन आएगा। अब इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में, यही जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक शख्स यहाँ खड़ा हुआ है और वो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, वो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो ये इसका नहीं, यहाँ पर नहीं है,
इस बॉक्स के बाहर यहाँ पर खड़ा हुआ है ऊपर, और वो इसका टॉप व्यू देख रहा है, तो इसका टॉप व्यू इसी ही एक्स वाई हॉरिजेंटल प्लेन पर शो होगा, इसी ही प्लेन पर इस ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू शो होगा। और जब एक ऑब्जर्वर दाएं तरफ खड़ा है और वो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो इसका तस्वुर जो है वो इस एक्स वाई वर्टिकल प्लेन पर आएगा और वो यहाँ पर होगा, और ये इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू होगा। तो इस ऑब्जेक्ट, मेरी बात का मकसद ये है कि इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू जो है वो इस एक्स वाई वर्टिकल प्लेन पर होगा, और इस ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू है वो इस एक्स वाई के हॉरिजॉन्टल प्लेन पर होगा। इसका टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पर होगा और इसका टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पर होगा, और इसका जो फ्रंट व्यू है वो वर्टिकल प्लेन पर होगा। जब ये टॉप व्यू बन गया है इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, और जब ये ऊपर हो जाए 90 पर रोटेट हो जाए, तो टॉप व्यू ऊपर आ जाएगा। जब ये टॉप व्यू ऊपर आ जाएगा तो ये फ्रंट व्यू नीचे रह जाएगा। तो इसी वजह से हम कह रही है कि टॉप व्यू अबव है, टॉप व्यू ऊपर चला गया है, टॉप व्यू इज अबव द रेफरेंस लाइन। ये रेफरेंस लाइन है और इस रेफरेंस लाइन से टॉप व्यू ऊपर है, और जो एलिवेशन है या जो फ्रंट व्यू है वो बिलो द रेफरेंस लाइन है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि अभी आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। नाउ 6 स्टैंडर्ड व्यूज, एक ऑब्जेक्ट के 6 साइड से उसका व्यूज बन सकता है। कौन कौन से? एक तो टॉप से बन सकता है, एक बॉटम से नीचे से बन सकता है। यहाँ पर अगर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो आप इसको ऊपर से देख लेंगे तो इसका जो तस्वीर है वो आपको दिखाई दे रहा है। बॉटम से भी इसका एक तस्वीर होगा, राइट साइड से भी ये एक तस्वीर बनाएगा, लेफ्ट साइड से भी इसका व्यू होगा, और ये फ्रंट साइड से भी इसका व्यू होगा, और एक रेयर साइड है जो पीछे वाला है। तो इतनी ही साइड्स इसकी बन रही है। एक क्यूब में 6 साइड्स होते हैं और ये 6 व्यूज बन रहे हैं। ये 6 कौन कौन सी व्यूज है? एक फ्रंट व्यू बन रहा है, ये फ्रंट व्यू है। एक बैक व्यू जो इसको हम रेयर व्यू कहते हैं। एक टॉप व्यू जिसको हम ऊपर से देख रहे हैं। एक बॉटम व्यू जो हम नीचे से देख रहे हैं। एक राइट हैंड साइड व्यू एंड लेफ्ट साइड हैंड व्यू। लेफ्ट हैंड साइड व्यू बन रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड, एंड राइट हैंड साइड व्यू बन रहा है फ्रॉम राइट साइड। नाउ इस कि समझाने का मकसद क्या है, इस बात का मतलब ये है, अगर आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बात ये होगा कि हमारे पास अगर इस क्यूब में एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, और अब आप इस तरह करें कि आप ये जो फ्रंट है, ये जो फ्रंट ऑफ द क्यूब है, आप इस तरफ से देख रहे हैं, तो इसका जो फ्रंट व्यू का जो ऑब्जेक्ट है या फ्रंट व्यू का जो इमेज है वो बन जाएगा रेयर साइड पर। मतलब ये है कि अगर आप एक चीज को या एक गाड़ी को आप देख रहे हैं, एक गाड़ी को आप देख रहे हैं इस तरफ से, तो आप का तस्वीर बन जाएगा इस पीछे की तरफ। मतलब ये है कि पीछे की तरफ आप तस्वीर बना लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप फ्रंट से देख रहे हैं तो आपका जो फ्रंट साइड का जो व्यू है या फ्रंट साइड का जो तस्वीर है तो वो क्या बन जाएगा? पीछे बन जाएगा। रेयर साइड पर क्या बन जाएगा? फ्रंट व्यू बन जाएगा। आपके ऑब्जेक्ट का जो फ्रंट है वो बन जाएगा रेयर साइड पर, और रेयर साइड का जो ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा फ्रंट व्यू पर। इस बात का मतलब ये है कि अगर आप एक चीज को राइट साइड से देख रहे हैं तो आप इमेज बना रहे हैं लेफ्ट साइड पर,
अगर आप लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो आपके साथ इमेज बन रहा है राइट साइड पर। तो इसी वजह से जब हम राइट साइड से देख रहे हैं तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, लेफ्ट साइड पर। तो इसी तरह हम कहते हैं कि ये राइट व्यू है, क्योंकि हमने राइट तरफ से देखा था और ये इमेज बन गया है। इसी तरह जब हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो इसका इमेज यहाँ पर बनेगा। तो इसी वजह से हम इसको लेफ्ट कहते हैं कि लेफ्ट व्यू है। लेफ्ट व्यू इस तरह है कि हमने लेफ्ट साइड को इस सब्जेक्ट से देख लिया तो ये तस्वीर बन गया। तो इसी वजह से हम इसको लेफ्ट व्यू कहते हैं, इसको राइट व्यू कहते हैं। इसी तरह अगर हम टॉप से देख ले तो इस ऑब्जेक्ट का जो तस्वीर है वो बन रहा है नीचे की तरफ। तो नीचे वाली हिस्से को हम टॉप व्यू कहते हैं। टॉप व्यू इस तरह के इसलिए कहते हैं कि हमने ऊपर से देखा है। नाउ बॉटम व्यू को हम ऊपर इस तरह लिखते हैं कि अगर हम नीचे से देख ले तो इसका तस्वीर ऊपर बनेगा, और जो तस्वीर ऊपर बनेगा इसको हम क्या कहते हैं, नीचे की तरफ से ऊपर एक तस्वीर बना हुआ है तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये बॉटम व्यू है। अब अगर आपको एक ही प्लेन में ये सारी वेव्स, ये 6 वेव्स आपको एक ही प्लेन में शो करना होगा तो किस तरह शो करेंगे। तो इसके लिए आप ये बात गौर से सुन ले कि फ्रंट व्यू जो भी होगा वो अपनी जगह होगा, वो तब्दील नहीं होगा। फ्रंट व्यू अपना जगह तब्दील नहीं कर रहा, ये बात आप गौर से समझ ले। ये हमारे पास फ्रंट व्यू बना है इस रेयर साइड पर, तो ये फ्रंट व्यू अपनी जगह रहेगा। लेकिन अगर हम दो चीज़ों का व्यूज बना रहे हैं तो एक फ्रंट व्यू है और एक उसके साथ एक और होगा। अगर हम उसके साथ बॉटम व्यू का बात कर रहे हैं तो ये बॉटम व्यू जो ऊपर की तरफ है वो खुल जाएगा और एक ही प्लेन में आ जाएगा। जब ये खुल जाएगा इस तरफ, ये बॉटम, ये जो ऊपर का जो टॉप है ये जब खुल जाएगा इसी तरफ तो ये बॉटम का जो व्यू है वो ऊपर आ जाएगा। तो ये फ्रंट व्यू है और बॉटम उसके ऊपर हो जाएगा। इसी तरह अगर आप फ्रंट व्यू और लेफ्ट साइड का व्यू बना रहे हैं तो फ्रंट अपनी अपनी ही जगह पर और लेफ्ट ये इस तरफ खुल जाएगा। जब ये फ्रंट खुल जाएगा तो ये फ्रंट के, जब ये लेफ्ट साइड खुल जाएगा तो ये फ्रंट की राइट साइड पर आ जाएगा। अब ये राइट व्यू जो है ये फ्रंट व्यू के साथ जब इमेज बना रही है तो फ्रंट व्यू अपनी जगह पर रह जाएगा, और ये राइट साइड जो है ये इस तरह है तो ये खुल जाएगा, इसी तरह होगा। तो ये फ्रंट व्यू अपनी जगह है और ये राइट साइड जो है ये इस तरह खुल गया तो ये राइट बन गया। नाउ ये फ्रंट व्यू और इसके बरमुकाबिल जो रेयर व्यू है वो किस तरफ आ जाएगा, वो इस रेयर व्यू की या वो इस राइट व्यू की दूसरी तरफ आ जाएगा। मतलब ये है कि फ्रंट व्यू के बरमुकाबिल क्या है, रेयर व्यू है, लेकिन वो रेयर व्यू जो है वो इस तरफ आ जाएगा और राइट साइड राइट व्यू के लेफ्ट साइड पर लग जाएगा। नाउ ये फ्रंट व्यू तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये टॉप व्यू जब खुल जाएगा, ये टॉप व्यू ये नीचे की तरफ इस तरह है और ये टॉप व्यू है। तो इस तरह होगा कि ये जो टॉप व्यू यहाँ पर बना हुआ है तो ये टॉप व्यू इस तरफ हो जाएगा, तो ये एक ही प्लेन में आ जाएंगे। तो फ्रंट व्यू ऊपर होगा और इसकी नीचे टॉप व्यू होगा। तो ये फ्रंट व्यू है और इसके नीचे टॉप व्यू है। नाउ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फिर बात अलग हो जाएंगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में एक ऑब्जर्वर इस बॉक्स के अंदर खड़ा हो सकता है, लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में एक ऑब्जर्वर इस बॉक्स के अंदर खड़ा नहीं हो सकता। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये एक ऑब्जर्वर है, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन या थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ये शख्स जो है ये देख रहा है इसी ऑब्जेक्ट के फ्रंट को, तो इस ऑब्जेक्ट का जो फ्रंट है वो इस ही फ्रंट पर शो होगा। इस ऑब्जेक्ट का अगर ये शख्स यहाँ पर खड़ा है और ये टॉप से देख रहा है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इस तरफ नहीं बनेगा, इसका इमेज यहाँ पर ही बनेगा।
तो यहाँ पर इसका टॉप व्यू बन जाएगा। जब ये शख्स यहाँ से देख रहा है, लेफ्ट साइड से देख रहा है, तो इसका इमेज यहाँ पर नहीं बन रहा, इस राइट साइड पर नहीं बन रहा है, लेकिन इसका इमेज इसी ही जगह पर बन जाएगा। तो ये इस तरफ हो जाएगा। मेरे बात का मकसद ये है कि ये शख्स अब बाहर खड़ा है। अगर ये शख्स अंदर खड़ा होगा, अंदर खड़ा होता, तो जब ये शख्स देख रहा होता तो ये इसका जो इमेज है वो राइट साइड पर उसको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अब ये शख्स बाहर खड़ा है, तो बाहर खड़ा होने की वजह से इस लेफ्ट साइड का जो लेफ्ट व्यू है वो लेफ्ट साइड पर ही रह जाएगी। ऊपर हमने कहा था कि अगर आप राइट साइड की व्यू की बात कर रहे हैं तो वो लेफ्ट साइड पर बनेगा, और लेफ्ट साइड के व्यू को जब आप बात करेंगे तो वो राइट साइड पर बनेगा। लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इस तरह नहीं है। फ्रंट व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रंट पर बनेगा, राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो राइट साइड पर बनेगा, टॉप साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो टॉप पर बनेगा, और लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट पर बनेगा। बॉटम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट ये है, और ये कहाँ पर बनेगा, ये बॉटम साइड पर ही बनेगा। तो हम कहते हैं कि फ्रंट व्यू, इसके ऊपर क्या है, टॉप व्यू है, तो टॉप अपनी जगह, इसके नीचे क्या है, बॉटम है, तो बॉटम अपनी जगह, इसकी लेफ्ट साइड पर लेफ्ट व्यू है, इसके राइट साइड पर राइट व्यू है, और इस फ्रंट के मुकाबले पर मैंने आपको कहा था कि रेयर व्यू था या बैक व्यू था, और वो बैक व्यू चला गया है राइट व्यू की राइट साइड पर। So this is enough for today's lecture. In the next lecture we are discussing problem number 8.1, in which we are discussing the different views of orthographic projection of an L-shaped solid objects, in which dimensions length, width and height are given, and they lie on the first quadrant. So we have to draw the front, top and side view of this L-shaped object in detail. So thank you for the lecture. Most welcome.